Hello friends, I am Chintan Joshi from Nalanda Vidyalay, Virpur Morbi, and in the subject Business Studies, we are discussing about chapter number 6, that is staffing, in the class 12th Commerce. Till now, in the staffing, we have completed about the concept of staffing, importance of staffing, as well as process of staffing. Today, in this video lecture, we are going to discuss about recruitment as well as types of recruitment. Let me see about recruitment. Recruitment is the process of motivating a large number of candidates to apply for a particular job in an organization. Higher the number of candidates, more is the possibility of selecting the right potential candidate. It has been defined as the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for the job in the organization. अगर रिक्रूटमेंट के बारे में बात की जाए तो बेसिकली रिक्रूटमेंट क्या होगा? रिक्रूटमेंट ऐसा एक प्रोसेस है जहां पर एम्प्लॉइज को, कैंडिडेट्स को, पर्सन्स को मोटिवेट किया जाता है किसके लिए? टू अप्लाई फॉर द पर्टिकुलर जॉब इन द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, right? Simply, if we want to say that what is recruitment will be a process where people are being motivated to apply for a particular job in the organization. अगर वही चीज दूसरे शब्दों में कही जाए तो like recruitment is like a process of searching for prospective employees, right? And stimulating. What is stimulating? Stimulating is again a motivating, right? So find out prospective employees and then motivate them to apply for jobs in the organization. Thus, if we want to conclude recruitment in 4 steps or 4 activities, we can say that number 1, it is the identification of various sources of labor supply. सबसे पहले तो लेबर कहाँ से आएंगे, मीन्स फ्रॉम वेयर एम्प्लॉइज आर गोइंग टू कम, राइट? उनको डिफरेंट सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना. सेकंड वन, इवेल्युएशन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ दिस रिसोर्सेज. फिर जो ये रिसोर्सेज है उसको इवेल्युएट करना. नंबर 3, सिलेक्टिंग द मोस्ट सूटेबल सोर्सेज और सोर्सेज. तो अभी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो सोर्सेज जहां से मिलने वाले हैं ऐसे सोर्सेज को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उसको इवेल्युएट किया, उसके बाद उसमें से जो मोस्ट सूटेबल सोर्स है उसको हमने सिलेक्ट किया. देन आफ्टर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम द कैंडिडेट फॉर द वैकेंसीज. उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी उस पर्टिकुलर सोर्स या सोर्सेज को सिलेक्ट करने के बाद कैंडिडेट को एप्लीकेशंस इनवाइट करेंगे, राइट? We are going to invite applications from the candidates for the available vacancies. So, recruitment is clear up to you, right? Now, let us see the 2 sources of recruitment. We can say that there are 2 types of recruitment. A, internal sources of recruitment. B, external sources of recruitment. Internal sources of recruitment includes 2 sub-classification or subtypes of internal sources of recruitment, that is transfer, second one is promotion. Whereas in the external sources of recruitment, there are a list of different sources like direct recruitment, casual collar, advertisement, employment exchange, placement agencies and management consultancies, campus recruitment, labor contractors, advertisement on televisions, and at last web publishing. So guys, let me discuss these 2 main sources of recruitment or main 2 types of recruitment in detail. First one, we are going to discuss about the first type, that is internal recruitment. So let me know first of all what is internal recruitment. Internal source of recruitment refer to the sources available
within the organization, within the enterprise. सिंपली अगर कहा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन से ही एम्प्लॉइज को फाइंड आउट करना और उसको रिक्रूट करना. हाउ इट इज गोइंग टू बी, लेट मी सी. Sometimes in case of vacancy, a candidate with the required qualification and experience is found within the organization itself. पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए हमें जो कैंडिडेट की तलाश है, हमें जो क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए, राइट, वो कई बार ऑर्गेनाइजेशन से ही मिल जाता है. The important internal sources of recruitment are as follows. सबसे पहला है ट्रांसफर. So let me clear over here what is internal source of recruitment. Right, first type is, so internal source of recruitment can be called as recruitment within the organization itself. Over here there are two subtypes of internal recruitment. Number one, that is the transfer. Transfer refers to shifting of an employee from one job to another one, from one department to another one, or from one shift to another shift without any change in the responsibilities and status of an employee. It means transfer वो कहा जाएगा जहां पर employees को एक जॉब से दूसरी जॉब में या तो उसके एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या फिर एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में उसको मूव करना, राइट, जहां पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज नहीं होगी, ना तो उसका स्टेटस चेंज होगा, राइट. It may be noted that transfer may lead to changes in duties and responsibilities, working conditions, but not necessarily salary of the employees. कई बार ऐसा पाया जाता है, means we are coming to know that sometimes responsibilities and duties might be changed, right? It is a might be, but it is sure that there will be no change in the employee's salary. It is an important source of fulfilling the vacancy in an organization by shifting an employee from another department. Hence, it is also referred to as a horizontal movement of employees. तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये जो ट्रांसफर वाला प्रोसेस है, ये जो ट्रांसफर सोर्सेस है, वो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही वैकेंसीज को फुलफिल किया जा सकता है, राइट. कई बार इस तरह के प्रोसेस को हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉइज भी कहा जाता है. हॉरिजॉन्टल लाइन, गाइस, वी आर अवेयर विद दैट इज अ स्लीपिंग लाइन, राइट. सेम लेवल ऑफ द डिपार्टमेंट, right, from one department to another department, or we can say that from the one shift to another shift, from one job duties to another job duties, etc. But it will be on the horizontal line, it will be on the standing line, on the same level of hierarchy. Is it clear? Right. One example for this, HR head of the marketing department, right, can be transferred to the फाइनेंस डिपार्टमेंट अगेन फॉर द सेम प्रोफाइल एज HR हेड, राइट. अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कोई HR हेड है, उनको वही डेजिग्नेशन, स्टेटस, सैलरी के साथ दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जाता है, या तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के एक यूनिट से दूसरे यूनिट में ट्रांसफर किया जाता है, इट विल बी कॉल्ड एज अ ट्रांसफर. और इस तरह से हम जो अवेलेबल वैकेंसीज है उनको फुलफिल कर सकते हैं. दूसरा है दैट इज प्रमोशन, राइट. प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग अ पर्सन फ्रॉम अ लोअर जॉब टू द अपर जॉब पोजीशन, अ लोअर जॉब पोजीशन टू द हायर जॉब पोजीशन. इट इंक्लूड्स हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोर फैसिलिटीज, बेटर स्टेटस एंड पे. देखो, सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि ट्रांसफर में क्या होता था बच्चों. ट्रांसफर में सेम लेवल पे जो है वो मूवमेंट होती थी एम्प्लॉइज की, राइट, शिफ्टिंग होती थी. यहाँ पर क्या है, प्रमोशन में सेम लेवल पे नहीं है, फ्रॉम लोअर ग्रेड टू अपर ग्रेड, राइट, फ्रॉम लोअर जॉब प्रोफाइल टू अपर जॉब प्रोफाइल. देखो, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर अपर जॉब प्रोफाइल में कहीं पर वैकेंसीज है तो पर्सन को प्रमोट करके, उसको प्रमोशन देके
उस वैकेंसीज को फुलफिल किया जा सकता है। देखो यहाँ पर जो चीज हो रही है, इट इज लाइक फ्रॉम लोअर टू अपवर्ड, राइट, फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड, राइट. So we can say that it is a vertical process because vertical line, trending line from lower to upward, right, higher job profiles. अभी यहाँ पर क्या होगा कि जॉब प्रोफाइल हायर हो रही है तो उनके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेगी, फैसिलिटीज भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ स्टेटस और पे आउट भी बढ़ेगा. सो इट इज लाइक अ प्रमोशन. It has a psychological impact on the employees and helps in improving their motivation, loyalty, and satisfaction as a promotion at the higher level in the organization may lead to a chain of promotion at lower level. सबसे पहले चेन ऑफ द प्रमोशन एट लोअर लेवल को समझ लेते हैं. देखो, बी पोजीशन वाला ए पोजीशन पे आया तो बी पोजीशन पे वैकेंसी जो है वो जनरेट हुई, पोस्ट जो है वो वैकेंट हुई, तो सी पोजीशन वाले को भी बी पोजीशन में लाया जाएगा, डी पोजीशन को सी पोजीशन पे लाया जाएगा और फिर लाइकवाइज लोअर ग्रेड पे नया रिक्रूटमेंट किया जाएगा. बट इट इज लाइक ए चेन ऑफ प्रमोशन फ्रॉम द लोअर लेवल, राइट. दूसरी चीज, प्रमोशन जो है वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट करता है एम्प्लॉइज के इम्प्रूवमेंट में, राइट. उसको मोटिवेट करता है, उसकी लॉयल्टी इंप्रूव करता है, उसको जॉब के लिए सेटिस्फेक्शन देता है, राइट. बिकॉज उनको ये चीज लगती है कि उसका जो काम है, उसका जो वर्क है वो रिकॉग्नाइज किया गया है, उसकी तारीफ की गई है, एज अ पार्ट ऑफ दैट उसको प्रमोट किया गया है, राइट. अर्लियर ही वाज हैंडलिंग सम पोर्टफोलियो, नाउ he is being promoted to another position, the higher position, or where more portfolio will be added to his profile, right. So promotion, you guys are aware with that. So there are two types of recruitment. Number one, that is internal source of recruitment. Number two, that is the external source of recruitment. In the internal source of recruitment, there are again two subtypes. Number one, that is the transfer. Number two, that is the promotion. So let me discuss about the advantages and limitations or disadvantages of the internal sources of recruitment. सबसे पहला है motivational values. Recruitment through internal sources motivates the employees to improve their performance. Employees work with more commitment, loyalty, and satisfaction, which also leads to peace in the enterprise because of promotional avenues. देखो, एम्प्लॉइज को प्रमोशंस मिलते हैं, एट दैट टाइम they will be satisfied with their job conditions, right, job working environment, as well as they will be motivated because they are being promoted, right. उनकी तारीफ हुई है, उनको आगे बढ़ाया गया है डेजिग्नेशन वाइज या फिर सैलरी वाइज एक्सेट्रा. उनका ओवर कमिटमेंट कंपनी की ओर बढ़ जाएगा. तो ओवरऑल इट विल क्रिएट मोटिवेशनल वैल्यू. सबसे पहला एडवांटेज. नंबर टू, इजी सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट. प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट बिकम्स वेरी सिंपल एंड इकोनॉमिकल. Further, internal sources is a more reliable way of recruitment since candidates are already known to the organization. देखो, हम जानते ही है ऑलरेडी उस एम्प्लॉय को जिनको हम डाउन से अपवर्ड की प्रोफाइल के लिए पुट करते हैं, वैकेंसीज को फिलअप करते हैं. सो ऑलरेडी द कैंडिडेट्स आर नॉन टू द ऑर्गेनाइजेशन. तो वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट हुआ हमारे लिए इजी सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट प्रोसेस का. दूसरी चीज हमारे लिए वो इकोनॉमिकल कॉस्टली नहीं होगी क्योंकि हम इंटरनल सोर्सेज से ही कैंडिडेट को चूज कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं. It will be more simple again. So easy selection and placement is the second advantage of internal sources of recruitment. Number three, no need for induction. देखो, इंडक्शन क्या होता है हम लोगों ने आगे देख लिया है, राइट. इंडक्शन चीज को इंट्रोड्यूस करना, राइट. तो अभी देखो, ऑलरेडी जो एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उसी को आप कहीं पे ट्रांसफर दे रहे हो या तो उसको प्रमोट कर रहे हो, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से वेल नोन है, introduced है, right. There is no need for induction training as people are recruited from within the organization.
ट्रांसफर ऑल्सो हेल्प्स एम्प्लॉइज टू प्रिपेयर फॉर द हायर जॉब, राइट। यहाँ पर ये चीज दी गई है कि भाई ट्रांसफर भी अगर मिलता है तो वो उसको आगे की जॉब के लिए प्रिपेयर किया जाता है, राइट। सो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है बिकॉज एम्प्लॉय इज वेल नोन टू द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड एडवांटेज हमारे लिए वो जाना पहचाना है। फोर्थ वन इज एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉइज। ट्रांसफर facilitates shifting of an employee from an overstaffed department to the department where there is a shortage of staff। कई बार ऐसा होता है कि भाई ट्रांसफर जरूरी नहीं कि एज अ पार्ट ऑफ पनिशमेंट हो, कई बार एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉइज के लिए भी ट्रांसफर किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक डिपार्टमेंट में या कंपनी के एक यूनिट में ओवर स्टाफ्ड एम्प्लॉइज है, तो उसमें से किसी को चूज करके या कुछ एम्प्लॉइज को ट्रांसफर दिया जाएगा ऐसे डिपार्टमेंट में जहां पर वैकेंसीज जनरेट हुई है या तो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, राइट। कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉइज जो है वो कोई डिपार्टमेंट से रिलीव किए जाते हैं या तो वो खुद से जॉब को छोड़ते हैं। उस कंडीशन में ओवर स्टाफ्ड डिपार्टमेंट से एम्प्लॉइज को ट्रांसफर करके जहां पर शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है ऐसे डिपार्टमेंट में स्विच ओवर किया जाता है। सो इट इज अ फोर्थ एडवांटेज दैट over here we are adjusting our surplus employees because of internal sources of recruitment। Fifth one is economical। Internal sources of recruitment is cheaper than external sources, right। internal sources of recruitment external sources of recruitment से ज्यादा cheaper है, right। external sources of recruitment हम देखेंगे तो आप लोग इसको और simplest way में समझ पाओगे, right। क्योंकि हम ज्यादातर बाहर से किसी को इनवाइट नहीं करते, उसके पीछे ना तो एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस करते हैं, ना तो ट्रेनिंग का, ना तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, ना एचआर कंसल्टेंसी का एक्सेट्रा। हम एडिशनल कोई कॉस्ट नहीं एप्लीकेबल करते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स अ चीपेस्ट सोर्स फॉर अस। कुछ डिसएडवांटेजेस भी है इंटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के। सबसे पहला है इनब्रीडिंग और लिमिटेड स्कोप फॉर फ्रेश टैलेंट, राइट। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इंटरनल सोर्सेज से हम जब कैंडिडेट को हायर करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं या तो उसको ट्रांसफर करते हैं, तो जो सिलेक्शन है वो हमारे लिए लिमिटेड हो जाएगा। देयर विल बी a limited number of candidates out of which we are going to transfer or promote, right। scope for the fresh talent is reduced where vacancies are filled through internal sources of recruitment। हम कुछ नए टैलेंट्स को इनवाइट नहीं कर पाएंगे। Second one is limited choice। The scope for the entrance of fresh and more talented employees is reduced vacancies are filled through internal promotions। देखो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि भाई इंटरनल सोर्सेज से जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस को क्लोज किया जाता है तो स्कोप जो है वो लिमिटेड हो जाता है। 3 या 4 कुछ टैलेंटेड बंदे हैं, उसी में से हम किसी को प्रमोट करेंगे या तो फिर ट्रांसफर देंगे, right। So limited choice। number 3 is lethargy among the employees due to assured promotion, right। जिस ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस बेस के हिसाब से प्रमोशन मिलता है, मींस जिसके 5 साल कंप्लीट हुए उसको छठे साल के जॉब में उसको प्रमोट किया जाएगा, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज की माइंडसेट जो है, उसकी जो साइकोलॉजी है वो लेथार्जिक हो जाती है, वो लेजी हो जाते हैं कि भाई क्या 5 साल ऐसे ही काम कर लेंगे, अगले साल प्रमोशन भी मिल जाएगा, सैलरी इंक्रीमेंट भी मिल जाएगा। So they might not be the goal oriented, right। at this time they becomes lazy because they are sure about their promotion strategies, right। So uh, this is again one of the disadvantage of the internal process of recruitment। Fourth one is lack of competition। देखो competition तो वहां पर है ही नहीं, right। we are not asking for the fresh talent, we are not inviting more candidates from the open market, right। we are selecting candidates from the limited sources that we have available। so this way it becomes the less competitive, right। जहां पर एम्प्लॉइज को पता है इस साल मेरा ही प्रमोशन होगा क्योंकि मेरे अलावा किसने काम किया है, राइट। उसकी कंपटीशन में और कोई टैलेंट नहीं होगा। फिफ्थ वन इज रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इस तरह से रिड्यूस हो जाएगी, राइट, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर मिलते हैं एक दूसरी वैकेंट प्रोफाइल को फिलअप करने के लिए।
तो उससे क्या होगा कि भाई कंपनी जो है वो हर साल ट्रांसफर दे रही है, फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर दे रही है, अभी इस जगह पे डाला है कल उस जगह पे डाल देगा, क्या काम करना, मीन्स साइकोलॉजी जो है वो यहाँ पर अफेक्टेड हो जाती है, राइट। और उसके कारण जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है। अगर दूसरे शब्दों से भी कहा जाए तो एम्प्लॉय की कंसिस्टेंसी नहीं रहती है कोई जॉब प्रोफाइल पे कि वो अपना बेस्ट आउटपुट दे सके। जैसे ही उसका बेस्ट आउटपुट आने का पॉइंट नजदीक आ रहा हो उसका ट्रांसफर हो जाता है, अगेन उसको नई जॉब प्रोफाइल के लिए डाला जाता है जो उसके लिए नया हो। एट दैट टाइम अगेन प्रोडक्टिविटी विल बी रिड्यूस्ड। इट्स वेरी सिंपल। सो यहाँ तक जो हमने देखा, इट इज ऑल अबाउट द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, राइट। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स, उसके एडवांटेज भी देखे, लिमिटेशंस भी देखे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिक्रूटमेंट। In the source of recruitment, we are going to discuss about the second part, that is external source of recruitment. So, what is external source of recruitment? Although vacancies in the organization cannot be fulfilled by the internal sources, thus an organization has to depend on external sources too for fulfilling the vacancies. It means inviting applications for fulfilling the vacancies from candidates outside the organization will be called as the external source of recruitment. Moreover, अगर ज्यादा कहा जाए तो it provides wider choice and entrance of new talent and blood in the organization, right? Because बाहर से employees को हम invite कर रहे हैं, ज्यादा नया talent और गर्म खून मिलेगा, right? यंगस्टर्स मिलेंगे, फ्रेशर्स मिलेंगे, टैलेंट मिलेगा, right? स्किल्ड एम्प्लॉइज मिलने के चांसेस रहेंगे। The common external sources of recruitment are as follows, right? जो 9 हमने देखे थे एक्सटर्नल सोर्सेज के सब टाइप्स, उसकी अभी यहाँ पर डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और गेट हायरिंग। अंडर दिस मेथड अ नोटिस इज डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड of an enterprise giving details regarding the job vacancies. The candidates together outside the premises of the organization on the date specified in the notice and on the spot selection is done. देखो यहाँ पर क्या होगा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाहर के गेट पे एक बोर्ड पे लिखा जाएगा, नोटिस लिखी जाएगी, गेट हायरिंग लिखा जाएगा, एम्प्लॉइज की जरूरत है, कारीगर चाहिए, राइट। तो जो आउटसाइड द प्रीमाइसेस जो लेबर्स देखे जाते हैं, एम्प्लॉइज देखे जाते हैं, वो इस नोटिस के जरिए वहां पर इकट्ठे होंगे, उसमें से इमीडिएटली स्पॉट सिलेक्शन किया जाएगा, राइट। और स्पेसिफाइड डेट को ही जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्लोज किया जाएगा। कंटिन्यू में देखते हैं। This type of method is generally used for the fulfilling casual vacancies of unskilled or semi-skilled jobs when there is a rush of work or when some permanent workers are absent. जैसे सिरामिक इंडस्ट्रीज में लेबर्स की जरूरत आती है, राइट। जैसे इंजीनियरिंग हब की इंडस्ट्रीज में लेबर्स की रिक्रूटमेंट आती है, जहां पर अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है, राइट। कई बार वर्कलोड ज्यादा हो जाता है तो हम हायरिंग कर लेते हैं, कई बार जो है वो परमानेंट वर्कर्स एब्सेंट होते हैं तो हम हायरिंग कर लेते हैं। तो इस कंडीशंस में नोटिस बोर्ड पे लिखा जाएगा कारीगर चाहिए, राइट, लेबर्स वी आर इन रिक्रूटमेंट, और एट दैट टाइम lots of karigars are going to apply over there. It is the cheapest method because it does not involve any cost of even advertisement. देखो ये सबसे cheapest है क्योंकि हम सिर्फ एक नोटिस लगवाते हैं गेट पे, वही से हमें कारीगर मिल जाते हैं। अनस्किल्ड लेबर्स चाहिए आफ्टर ऑल। दिस इज ऑल्सो नॉन एज द रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट। जैसे मैंने अर्लियर बताया, फैक्ट्री कंपनी के बाहर पे ही गेट पे रिक्रूटमेंट का नोटिस लगवा के यह प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। Second one is casual caller or waiting list. Business enterprises maintain a record of uncalled applications in their offices. Such candidates can be called for fulfilling the vacancies as they arise. These sources of recruiting saves a lot of cost as compared to other sources. यहाँ पर क्या होता है कि एक वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है या तो कैजुअल कॉल किया जाता है। अर्लियर पहले जब एम्प्लॉइज वहां पर आ चुके हैं, कैंडिडेट आ चुके हैं इंटरव्यूज के लिए, तो जरूरी नहीं कि सारे कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया होगा, राइट। फॉर एग्जांपल 10 वैकेंसीज अभी है, राइट, प्रोफाइल की वैकेंसीज है, तो इट माइट हैपन कि उसके लिए 100 से भी ज्यादा एप्लीकेशन आई होगी, जिसमें 50 से भी ज्यादा इंटरव्यू कंडक्ट किए गए होंगे।
तो उसमें से जो बेस्ट परफॉर्मर है उसके जो प्रोफाइल है, रिज्यूम से उसको कंपनी सेव करके रखती है। अभी चाहिए 10 लोग, 10 का रिक्रूटमेंट हो गया, बाकी का 40 अच्छे कैंडिडेट का क्या करें। फिर जब जरूरत आती है, राइट, 10 में से कोई एम्प्लॉय जो है वो चला जाता है, या तो उसको हम ट्रांसफर या प्रमोशन देते हैं, राइट, या तो वो छोड़ देता है कोई भी रीजन से, तो जो रेस्ट ऑफ 40 थे उसमें से उस वेटिंग लिस्ट में से हम किसी को वापस इनवाइट करेंगे, राइट, और अवेलेबल वैकेंसीज को फुलफिल करेंगे। सो कैजुअल कॉल और वेटिंग लिस्ट क्लियर है। थर्ड वन इज एडवर्टाइजमेंट। इट इज वेल नोन टू यू गाइज, वेल फेमस, राइट, आप लोगों को भी पता है। एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, बिजनेस मैगजीन्स एंड जर्नल्स is a very common source for fulfilling the senior position in an organization. The most important advantage of these resources is that complete information about the job and the organization can be given in the organization advertisement. Moreover, it provides wider range of candidates. देखो, एडवर्टाइजमेंट के लिए हम सब जानते हैं कि भाई न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए, वर्कर्स चाहिए, लेबर्स चाहिए, ऑफिसर चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, एचआर एडमिन चाहिए, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए, सीएनसी ऑपरेटर चाहिए, वीएनसी मशीन ऑपरेटर चाहिए, टीचर्स चाहिए, एक्सेट्रा, राइट। तो सीनियर प्रोफाइल के लिए बेसिकली ये एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है न्यूज़पेपर में, बिजनेस मैगजीन्स में, जर्नल्स में, एक्सेट्रा। इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि एडवर्टाइजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और जॉब के बारे में सारी चीजें लिखी जाएगी, उसका डिटेलिंग डाला जाएगा, तो सामने वाले को अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि भाई किस प्रोफाइल का काम है, कैसा काम है, क्या सैलरीज रहेगी, एक्सेट्रा। कंटिन्यू में देखते हैं। इट इज अ वेरी पॉपुलर वे ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, हमको पता ही है। एंटरप्राइजेस गिव एडवर्टाइजमेंट mentioning the post, job profile, required qualifications, experience, etc. of prospective candidate in the newspaper, journals and internet, etc. Right? So it is very simple to understand. आगे कंटिन्यू में देखते हैं। If an enterprise does not want to disclose its identity, applicants are asked to reply to the mentioned post box number. कई बार जो है एडवर्टाइजमेंट में पीओ बॉक्स नंबर दिया जाता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि कंपनी अपना नाम नहीं लिखती है और कंपनी जो है वो पोस्ट ऑफिस में अपना बॉक्स नंबर जो है वो उसको हायर करती है, लाइक अ लॉकर इन बैंक। तो वो लोग पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर को हायर करेंगे, जो कुछ भी एप्लीकेशन आएगी वो उस पोस्ट ऑफिस बॉक्स में डिपॉजिट होगी और फिर कंपनी जो है वहां से निकाल के रिक्रूटमेंट लेगी। तो कई बार जरूरी नहीं कि एड्रेस जो है वो लिखा जाए कंपनी का कि एप्लीकेशन कहाँ पर फॉरवर्ड करनी है या तो कहाँ पर आना रहेगा। इस तरह से भी किया जा सकता है। आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते उसके लिए these resources or sources provides the enterprise with a number of candidates। कई सारी एप्लीकेशंस मिलती है, नंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज मिलते हैं, easy। Fourth one is employment exchange। Employment exchange act as a good source for the recruiting skilled and semi-skilled workers। These are run by the government and act as a link between the job seekers and employers। देखो, गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो हमें पता है, अगर नहीं पता है तो उसको समझ लेते हैं कि बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, वो जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में एज अ लिंक वर्कआउट करती है, राइट। वो स्किल्ड और अनसेमी स्किल्ड वर्कर्स को मीट करवाएगी ऐसे एम्प्लॉयर्स के जिसको उनकी तलाश हो, राइट। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस रजिस्टर्ड द डिटेल्स ऑफ जॉब सीकर्स। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जॉब सीकर्स की डिटेल्स जो है वो लिखी जाएगी, रजिस्टर्ड की जाएगी। The organization requiring candidate get the detail from the employment exchange and recruit the employees। अभी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसको रिक्वायरमेंट है कैंडिडेट की, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को कांटेक्ट करेंगे, वहां से रिक्रूटमेंट के लिए प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। It is an economical source of recruitment through it is suitable though it is suitable for unskilled and skilled operative jobs, it is not suitable for highly skilled personnel। देखो, इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट भी इसको कह सकते हैं कंपैरेटिवली। हालांकि हमने आगे देखा कि यहाँ पर जो है वो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड एम्प्लॉइज के लिए, जॉब सीकर्स के लिए
इसको ऑपरेट किया जाता है, तो ये ज्यादातर हाईली स्किल्ड पर्सनल के लिए हेल्पफुल नहीं रहेगी, सुटेबल नहीं रहेगी। फिफ्थ वन इज प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। प्लेसमेंट एजेंसीज कंसिस्ट ऑफ प्राइवेट एजेंसीज एंड प्रोफेशनल बॉडीज। देखो वो भी वन काइंड ऑफ ऐसे ही है, मीडिएटर से, जैसे हमने आगे के पॉइंट में राइट एम्प्लॉय एक्सचेंजेस को देखा, बट ये लोग जो है वो प्राइवेट बॉडी है, राइट, प्राइवेट कंसल्टेंट है, प्रोफेशनल बॉडीज है। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रिक्रूटिंग द कैंडिडेट फॉर द टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एरियाज। देखो इन लोगों का काम क्या रहेगा, ये भी वही चीज करेंगे, जॉब सीकर्स जो है वहां से रिज्यूम कलेक्ट करेंगे, उनको फॉरवर्ड करेंगे एम्प्लॉयर्स को, लिंक का ही काम करते हैं। बट इन लोगों का बेसिकली जो काम रहता है वो टेक्निकल और हाईली प्रोफेशनल एरियाज में जहां पर रिक्रूटमेंट है उनके लिए होता है, जैसे मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर का रिक्रूटमेंट लेना, ऑफिसर ग्रेड का रिक्रूटमेंट लेना, एक्सेट्रा। These agencies keep biodata of a large number of candidates and provide a nationwide service of recommending suitable name to their clients। देखो ये क्या करते हैं कि उनके पास जो है वो बहुत सारी क्वांटिटी में एम्प्लॉयज के बायोडेटा रहते हैं, राइट, जैसे naukri.com ले लो, राइट, जैसे लोकल बॉडी में ऋषभ कंसल्टेंसी ले लो, राइट, एक्सेट्रा। तो वो लोग क्या करते हैं, पूरे सबका बायोडेटा उनके पास रहता है और फिर उसमें से वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयर्स को। कंटिन्यू में देखते हैं इसी टॉपिक को। दे चार्ज द रिक्विजिट फीस फॉर देयर सर्विसेज। वो लोग कंसल्टेंसी फीस लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि वो कैंडिडेट से भी हायर फीस लेते हैं, एम्प्लॉयर से भी फीस लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ कैंडिडेट से फीस ली जाएगी, एम्प्लॉयर से फीस नहीं ली जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि कैंडिडेट से नहीं ली जाती है, सिर्फ एम्प्लॉयर से वो अपनी कंसल्टिंग फीस लेते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंट ऑल्सो प्ले अ लीड रोल इन रिक्रूटिंग मैनेजरियल पर्सनल बोथ एट मिडल एंड टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखो यहाँ पर हमने देखा कि दे आर गोइंग टू रिक्रूट लाइक ऑफिसर्स, डेप्यूटी मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, एक्सेट्रा। तो उन लोगों का काम जो है वो मिडल लेवल पर और टॉप लेवल मैनेजमेंट पे प्रोफाइल्स को रिक्रूट करवाना है। दे ऑल्सो हेल्प इन रिक्रूटिंग टेक्निकल एंड प्रोफेशनल पर्सनल टू, चीज ऑलरेडी देखी है। होप सो यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं है। इसी पॉइंट में कंटिन्यू में आगे देखते हैं। दे कीप अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ स्किल एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ द candidates and sometimes even advertise the job on behalf of their client in order to recruit the most potential candidate। देखो कई बार डायरेक्टली क्लाइंट ऑर्डर नहीं देते हैं, बट वो लोग जो है वो ऑन बिहाफ ऑफ देम एडवर्टाइजमेंट देके कैंडिडेट्स के एप्लीकेशंस को इनवाइट कर लेते हैं, राइट, और अपने पास उनकी बायोडेटास को स्टोर करके रखते हैं। सिक्स्थ वन इज कैंपस रिक्रूटमेंट। देखो ये चीज आप लोगों के लिए जानी पहचानी है, आपने कई सारे मूवीज में इस वर्ड को सुना है, अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर से या अपने सीनियर से इस चीज को सुनी हुई है, राइट। रिक्रूटमेंट थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज नोन एज कैंपस रिक्रूटमेंट। जहां पर पढ़ाई करवाई जाती है वही से ही आदमी को, कैंडिडेट को जो है वो जॉब दिलवा देना। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स लिंक्स with educational institutions for recruiting technical, professional and managerial personnel for the various job। Nowadays, most of the institutions have their own employment and guidance bureau with the aim of providing employment to their students। देखो अभी के दिनों में क्या हो रहा है कि कैंपस प्लेसमेंट क्या है वो चीज पूछी जाती है, कितने लोगों को रिक्रूटमेंट दिया जाता है, क्या पैकेज मिलता है, उस इंस्टीट्यूट का नाम और ज्यादा फेमस हो जाता है। मीन्स दोज इंस्टीट्यूशंस हु आर प्रोवाइडिंग मोर कैंपस प्लेसमेंट इन टेक्निकल, मैनेजरियल एज वेल एज साइंस बैकग्राउंड और टीचिंग बैकग्राउंड एक्सेट्रा, तो उनको प्रायोरिटीज दी जाती है। स्टूडेंट्स जो है वो उनको सिलेक्ट करते हैं अपने फर्दर कैरियर एजुकेशन के लिए। सेवंथ वन इज रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को रिकमेंड करना। एप्लीकेंट्स इंट्रोड्यूस on recommendation of the present employees or friends or relatives prove to be very good source of recruitment। Since the background of such applicants is already known, they prove to be good employees। देखो ये क्या है, कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो अभी वहां पर वैकेंसीज
जनरेट हुई है, तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को बताया जाएगा कि भाई आपके कोई रिलेटिव फ्रेंड सर्कल्स में से, ग्रुप में से किसी को यहाँ पर इस पोस्ट के लिए आना है, तो हम लोगों ने एप्लीकेशंस को इनवाइट करना शुरू किया है, आप अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर सकते हो थ्रू रिकमेंडेशन ऑफ द करंट एम्प्लॉइज, राइट? न्यू रिक्रूटमेंट विल बी executed. Eighth one is labor contractors. Labor contractors helps in recruiting a large number of unskilled workers at a short notice. These labor contractors are themselves employees of the organizations. Hence, the main disadvantage of recruiting workers through them is that wherever they leave the organization, the worker employed बाय देम ऑल्सो लीव। देखो लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या है कि जो ऑलरेडी अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो उसी लोगों को मास रिक्रूटमेंट के लिए और अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए शॉर्ट पीरियड में लाया जाने के लिए बोला जाता है, राइट? रिक्रूटमेंट करने के लिए बोला जाता है। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर के जरिए हम अनस्किल्ड लेबर्स का जो है वो रिक्रूटमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर लेते हैं। अभी इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? कई बार जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन का कुछ अनबन हो गया और वो लोग इसको छोड़ के जा रहे हैं, तो इनके कारण जो कुछ भी एम्प्लॉइज रिक्रूट हुए थे, वर्कर्स एम्प्लॉयड हुए थे, वो भी अपनी जॉब छोड़ के चले जाएंगे, बोलेंगे कि हमारे यूनियन लीडर नहीं रहे, हम कहाँ से यहाँ पर काम करेंगे, राइट? सो इट इज लाइक अ यूनियन लीडर और लेबर कॉन्ट्रैक्टर। नाइन्थ वन एंड लास्ट वन इज डिसएडवांटेज एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन। ज्यादातर हम लोगों ने टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट नहीं देखी होगी, बट इट इज वन काइंड ऑफ एक्स्ट्रा सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। एट प्रेजेंट द प्रैक्टिस ऑफ टेलीकास्टिंग ऑफ वैकेंट पोस्ट ओवर टेलीविजन इज बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट। द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जॉब ऑर्गेनाइजेशन एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड आर पब्लिश्ड, राइट? बताया जाएगा। सॉरी, लास्ट वन इज वेब पब्लिशिंग, राइट? इट वाज द सेकंड लास्ट। Last one is web publishing. Another important source of recruitment these days is the internet. देखो आजकल हमें पता ही है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, स्नैपचैट है, राइट? ऐसी वेबसाइट्स है, जॉब पोर्टल्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जहां पर रिक्रूटमेंट की चीजें डाली जाती है। सर्टेन साइट्स फॉर एग्जांपल www.naukri.com, jobstreet.com, monster.com, etc. specially designed for the providing information to both job seekers and job providers. तो वेब साइट के जरिए भी एडवर्टाइजमेंट आप करके जॉब सीकर्स को जॉब दिलवा सकते हो, एम्प्लॉयर्स को वर्कर्स दिलवा सकते हो। तभी इसके एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला है क्वालिफाइड पर्सनल। एक्सटर्नल सोर्सेस हेल्प ऑर्गेनाइजेशन to select trained and qualified personnel from the large number of competent applicants wanting to work with them, right? ओपन मार्केट से हम सोर्सेज को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि ज्यादा क्वालिफाइड और स्किल्ड एम्प्लॉइज को हम इनवाइट कर पाएंगे। सेकंड वन इज वाइडर चॉइस। दिस सोर्सेज प्रोवाइड अ वाइडर चॉइस टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिलेक्टिंग द कैंडिडेट। देखो यहाँ पर चॉइस भी वाइडर हो जाएगी बिकॉज लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस आर गोइंग टू अप्लाई। थर्ड वन इज फ्रेश टैलेंट। जो अगले का डिसएडवांटेज था वो इसी का एडवांटेज है, क्योंकि हम फ्रेश टैलेंट को भी इनवाइट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हम एग्जिस्टिंग स्टाफ को यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो फ्रेश टैलेंट और यंगस्टर्स, न्यू ब्लड एक्सेट्रा, राइट, विल अप्लाई ओवर हियर। और वो जब आएंगे तो वो अपने मॉडर्न थॉट्स, आइडियाज के साथ ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री लेंगे। फर्स्ट वन इज कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। देखो कंपटीशन तो रेज होगा क्योंकि एक्सटर्नल सोर्सेज से हम रिक्रूटमेंट ले रहे हैं, लॉट्स ऑफ कैंडिडेट्स आर गोइंग टू अप्लाई, सो देयर विल बी अ माहौल ऑफ कंपटीशन, राइट? एनवायरनमेंट विल बी ऑफ कंपटीशन। यूज ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ recruitment by an organization increases competitive spirit among the existing staff. देखो अभी जब बाहर से स्टाफ को हायर कर रहे हैं तो इंटरनल स्टाफ को भी पता चलेगा कि भाई कल सुबह अगर हम कंपटीशन में नहीं रहेंगे तो हमें भी फायर करके कोई नए स्टाफ को रिक्रूट कर लेंगे। दे गेट मोटिवेटेड टू गिव बेटर परफॉर्मेंस, तो वो अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहला है डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ।
देखो अगले में जो इसका एडवांटेज था ना वही इसके लिए अभी डिसएडवांटेज है, राइट। जैसे हम बाहर से किसी को हायर करने की कोशिश करते हैं तो अंदर वाले एग्जिस्टिंग स्टाफ को क्या होगा, भाई हमारी जॉब अभी खतरे में हो सकती है, राइट। सो इट इज लाइक अ डिससेटिस्फेक्शन फीलिंग्स. Use of external sources of recruitment by an organization results in the dissatisfaction among the existing staff as they feel that their chances of promotion get reduced, they are not secure, etc. Second one is lengthy process. Yes, it is a very much lengthy process. It is not so simple as internal sources of recruitment, right? बहुत लंबी प्रोसेस चलती है, एडवर्टाइजमेंट करना, राइट, कैंडिडेट की एप्लीकेशंस को इनवाइट करना, एप्लीकेशंस को स्क्रूटिनी करना, उसमें से अच्छी को सिलेक्ट करना, फिर इंटरव्यू करना, उसमें से भी सिलेक्ट करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस, राइट. थर्ड वन इज कॉस्टली प्रोसेस. जितनी लंबी है भाई उसके लिए जितने स्टेप लगते हैं उस सभी में कुछ ना कुछ तो कॉस्ट होने ही वाला है. Again, it's like a costly process. Recruitment of personnel through external sources involves a lot of money to be spent on advertisement and processing of applications. Thus, it is a very costly process. So, with this, right over here, we are closing our topic of recruitment, right? In this video lecture, we have discussed about the recruitment. What is recruitment? Number two, we have discussed about the internal source of recruitment and its two subtypes as well as its advantages and disadvantages. Again, we have discussed in this video lecture external sources of recruitment. It's a total 10 types, subtypes of external sources of recruitment as well as advantages and disadvantages of external sources of recruitment. Also, you guys may not have any doubts in this easiest topic. Still, any doubts, you are feel free, right, to ask me. Thank you, guys.